عثمانی تخت کے طاقتور حاکم سلطان محمد اول، چونکہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو ایک بڑی تباہی سے بچایا تھا، لہذا مورخین سلطان محمد اول کا موازنہ حضرت نو سے کیا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی کشتی سے مومنوں کو بچایا تھا۔ سلطان بایزید، جسے بایزید تھنڈر بولٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کے دور حکومت کے بعد سلطان محمد اول عثمانی تخت پر بیٹھا۔ سلطان محمد اول کو محمد علیبی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، ایک ترک لقب جس کا مطلب ہے شریف، خوش اخلاق و شائستہ۔ محمد اول نے اس ملک میں نظم و ضبط اور امن لایا جو تیموری حملے کے بعد شدید بدنظمی کا شکار تھا، اور اپنے والد کی وراثت کو دوبارہ اکٹھا کر کے سلطنت عثمانیہ کا دوسرا بانی بن گیا۔ چونکہ وہ ایک ماہر تیر انداز تھا، لہذا اسے اکریسی بھی کہا جاتا تھا، ترکی میں کریس کا مطلب کمان ہے۔ محمد میں نے انقرہ کی جنگ کے دوران اسے یرغمال بنانے آئے منگول کمانڈر کو بھی تیر سے گولی مار دی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکریسی کا لقب یونانی لفظ کریٹسیز سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے چھوٹا بے سر۔ سلطان محمد اول کی تاریخ پیدائش یقینی نہیں ہے، لیکن وہ ممکنہ طور پر 1382، 1386 یا 1389 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی والدہ جرمنی شہزادی ڈیولٹ ہٹون کو بھی سیلیبی کے لقب سے پکارا جاتا تھا، کیونکہ وہ عظیم صوفی مولانا جلال الدین رومی کی پوتی تھی۔ یہ لقب رومی کی اولاد کو بھی دیا گیا تھا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کا نسب خلیفہ ابوبکر اور خلیفہ عمر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے پوتے حسین اور آخر میں قریش کے قبیلے تک جاتا ہے۔ انہوں نے اس وقت کے مشہور علماء سے تعلیم حاصل کی جب وہ ایک شہزادہ تھے، اور انہیں ارم کے ایولٹ صوبہ کے گورنر کی حیثیت سے آمیسیے کو تفویض کیا گیا تھا۔ انہوں نے 16 سال کی عمر میں امیر تیمور تیمرلین یا سلطنت کے خلاف لڑی جانے والی انقرہ کی جنگ میں حصہ لیا اور زخمی ہو گئے۔ عثمانیوں کی جنگ ہارنے کے بعد وہ اپنی فوج کو بچانا چاہتا تھا اور اپنی ایولٹ پر واپس چلا گیا۔ اماسیہ کے لوگوں نے اس کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ شہزادے محمد نے اس جنگ کے بعد اپنے والد کو قید سے بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ تخت کے لیے لڑنے والے بھائی۔ اپنے والد کی موت کے بعد اس کے بڑے بھائی سلیمان سیلیبی نے دارالحکومت ایڈرن میں اپنی سلطنت کا اعلان کیا، جبکہ عیسیٰ علیبی نے سابق دارالحکومت برسا میں بھی ایسا ہی کیا، اور موسیٰ علیبی نے اعلان کیا کہ وہ قطح میں تخت پر بیٹھا ہے۔ اس طرح باقی عثمانی ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جو تیمور بالکل وہی چاہتا تھا۔ چاروں بھائیوں نے سفارتی طور پر کام کیا اور تیمور کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ اس طرح وہ مقامی مکھیوں پر اپنا اختیار مسلط کرنے میں کامیاب ہو گئے جو تیمور کے زیر تسلط تھے۔ بلقان کی کسی بھی ریاست نے اس افراتفری سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں نہیں سوچا۔ اس کے بعد عثمانی تاریخ میں ایک بین الاقوامی دور کا آغاز ہوا، جس میں شہزادوں نے تقریباً 10 سال تک جدوجہد کی۔ عثمانی مورخین سلطان بایزید کے دیگر 3 بچوں کی حکمرانی کو قبول نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بعد کے سلطان محمد اول کی اولاد تھے۔ سلطان محمد اول کے 3 بھائی کبھی بھی پورے عثمانی ملک پر غلبہ حاصل نہیں کر سکے، لیکن یورپی مورخین اور کچھ جدید ترک مورخین سلیمان اور موسیٰ کو سلطانوں کی اپنی فہرست میں شمار کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دارالحکومت ادرنے میں حکمرانی کی تھی، اور محمد اور عیسیٰ کو سلیمان کے ماتحت دکھایا ہے۔ چونکہ عثمانیوں کے لیے جانشینی کی کوئی حکومت قائم شدہ حکمرانی نہیں تھی، لہذا بزرگ کو تخت کے لیے اپنے دوسرے بھائیوں پر کوئی برتری حاصل نہیں تھی۔ قدیم ترک روایت میں اقتدار کو خاندان کی مشترکہ ملکیت سمجھا جاتا تھا، لہذا بھائیوں پر پرعزم ہونے کا الزام نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے تخت دوسروں پر نہیں چھوڑا تھا۔ عیسیٰ علیبی، جس نے اناطولیہ میں زمینوں کو بانٹنے کی محمد علیبی کی پیشکش پر رضامندی ظاہر نہیں کی، سلیمان سیلیبی نے اسے اکسایا۔ اس کے بعد اسے ایک کے بعد ایک 2 مرتبہ شکست ہوئی، اور 1410 میں محمد علیبی نے اسے قتل کر دیا۔ اس طرح اناطولیہ میں عثمانی سرزمین کا ایک بڑا حصہ سلطان محمد کی حکمرانی میں چلا گیا۔ اس کے بعد محمد نے سلیمان کو شکست دی، جو 1411 میں اپنے بھائی موسیٰ کے ساتھ مل کر اس پر آگے بڑھ رہا تھا۔ سلیمان کو استنبول جاتے ہوئے کچھ دیہاتیوں نے بے خبر پکڑ لیا اور قتل کر دیا جب موسیٰ آزادانہ طور پر ایڈرین میں داخل ہوا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک اچھے دل کے مالک تھے، لیکن وہ ایک خود کفیل شخص تھے۔ لیکن عثمانی کمانڈروں اور عوام نے سخت موسیٰ کے بجائے اعتدال پسند محمد کو ترجیح دی۔ موسیٰ، جسے استنبول کے قریب انسیز میں شکست ہوئی تھی، کو پھانسی دے دی گئی۔ اس طرح سلطان محمد علیبی ملک کے واحد حکمران بن گئے۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتا ہے۔ عثمانیوں کو کاغذ پر تیمور کے بیٹے شاہ رخ کے تابع کیا گیا تھا، اور شاہ رخ اناطولیہ یونین کے دوبارہ قیام سے مطمئن نہیں تھے۔
उसने सुल्तान मोहम्मद को इस बुनियाद पर मलामत का खत लिखा कि ये मंगोल सल्तनत के बानी और पहले अजीम खान चंगेज़ खान के रस्म और रिवाज के खिलाफ था कि इसने अपने भाइयों को ख़त्म कर दिया। सुल्तान मोहम्मद अव्वल, जो शाहरुख के साथ परेशानी पैदा न करने के लिए बहुत मोहतात थे, ने जवाब दिया, मेरे आबाओ अजदाद ने तजुर्बे से कुछ मुश्किलात को हल किया है। दो सुल्तान एक मुल्क में नहीं रह सकते। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद ने मुल्क के इत्तेहाद को बहाल करने के लिए काम करना शुरू किया। उनके पास अपने वालिद की जहानत थी, लेकिन वो कहीं ज्यादा एतदाल पसंद थे। वो ममलुकों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने में कामयाब रहा, जो उसके वालिद के दौर में खराब हो गया था। जब सुल्तान मोहम्मद अव्वल अपने भाई मूसा के साथ जिदोजहद कर रहा था तो करमानियों में से मोहम्मद भी दुवम उस्मानी सरजमीन में दाखिल हुए और बरसा का मुहासरा किया। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने अनातोलिया पर पेश कदमी की और इदौहे, मीनितशह और सरोखानियों की बीली सल्तनतें शामिल की, जिन्हें इसके वालिद ने फतह किया था, और तैमूर ने एक बार फिर उस्मानी सरजमीन पर उनके साबिका बेड़ों को वापस कर दिया था। असफंदियारों ने बैत का ऐलान किया, लेकिन इन बेलियक्कों ने उस्मानियों के खिलाफ करमानियों के साथ इत्तेहाद किया। एडेंस के कुनियत बे, जिसे सुल्तान मोहम्मद ने मुआफ कर दिया था और रोमिलिया में गवर्नर के तौर पर तफवीज़ किया था, ने अपना वदा तोड़ा और सुल्तान के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। दरी असना जैनवई, जिन्होंने एजियन जज़ायर पर गलबा हासिल किया, ने टैक्सों के बदले उस्मानियों के साथ अपने इत्तेहाद का ऐलान किया। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने करमानियों के मोहम्मद बे दुवम को शिकस्त दी, जो उसकी खाला का बेटा था। जैसे ही मोहम्मद दुवम फरार हुआ, इसका आधा इलाका उस्मानियों के हाथों में चला गया। करमानियों के मोहम्मद दुवम के बेटे ने अपने वालिद की तरफ से कसम खाकर कहा, जब तक ये रूह इस जिस्म में है, हम दोबारा उस्मानियों के खिलाफ तलवार नहीं खींचेंगे। ताहम जब सुल्तान चला गया तो उसने एक कबूतर छोड़ दिया जो उसने अपनी जैकेट में छुपा था, और ऐलान किया कि इसका हल्फ बातिल है। उसने अपने आसपास के लोगों से कहा, उस्मान के साथ हमारी दुश्मनी झूले से कब्र तक जारी रहेगी। अनातोलिया से रोमिलिया तक सुल्तान मोहम्मद अव्वल, जो कम व बेश अनातोलिया में एक यूनियन कायम करने में कामयाब रहा, बाद में रोमिलिया चला गया। उन्होंने वीनस के लोगों पर पेश कदमी की, जिन्होंने उस्मानियों के साथ 1414 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। 30 बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल उस्मानी बहरिया, जो अपने दुश्मन की तरह बहरी जंग की तकनीक से वाकिफ नहीं थी, को शिकस्त हुई। लेकिन उस्मानियों ने एजियन जज़ायर पर हिट एंड रन हथकंडों के जरिए दुश्मन को हरासा करना जारी रखा। बाज़ंतए शहंशाह की सालसी के जरिए दोनों ताकतों के दरमियान अमन कायम हुआ, और वीनस ने इससे होने वाले नुकसान की तलाफी की। उस्मानियों ने वीनस के तिजारती जहाज़ों को डार्डेनस से गुजरने का हक भी दिया। एक उस्मानी सफ़ीर मुआहदे की मुसद्दका कापी वीनस ले गया, और एक जश्न की तकरीब के साथ इसका इस्तकबाल किया गया। ये यूरोप में पहला उस्मानी सफ़ीर था। सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने बाद में विलाचिया पर पेश कदमी की, जिसने इस अलामती टैक्स को रोक दिया जो उसने तवील अरसे से अदा किया था और तख्त के लिए जिदोजहद से गुजर रहा था। हिंगरवालचा इत्तेहादी अफवाज को शिकस्त हुई, और विलाचिया पर उस्मानी गलबे की तस्दीक हो गई। बोस्निया और अल्बानिया का जनूबी हिस्सा उस्मानियों के हाथों में चला गया। बोस्नियाई और अल्बानवी, जो ईसाइयत के बोगोमल फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते थे, जो इस्लाम के करीब है, हंगरी के कैथोलिक प्रोपेगेंडे से तंग आ गए थे और इज्तिमाई तौर पर इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया था। जंग अनकरा के बाद जब तैमूर अपने इलाके में वापस आया तो उसने सुल्तान बायज़ीद के बेटों में से एक शाहज़द मुस्तफ़ा को यरगमाल बना लिया था। शाहरुख खान की जानिब से रिलीज होने वाले मुस्तफ़ा ने 1420 अशारिया में रोमिलिया में विलाचिया के मक्खी और एडेंस के कुनियत बे की मदद से बगावत की। उसने अपनी सल्तनत का ऐलान किया। सुल्तान मोहम्मद ने अपने भाई पर पेश कदमी की और अपने दूसरे भाई की वापसी का मुतालबा किया, जिसने शिकस्त के बाद बाज़ंतए कंट्रोल में सलूनी के कले में पनाह ली। शहंशाह ने मुदाखलत की और इसे रहा न करने बल्कि उसे यरगमाल बनाने का फैसला किया। फतह नहीं। सुल्तान मोहम्मद अलीबी 1421 अशारिया में 35 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने या पैचिश की वजह से एड्रीन में इंतकाल कर गए। बीमारी के दौरान उनका कहना था कि मेरे बेटे मुराद को फौरन ले आओ, मैं अब इस बिस्तर से नहीं उठ सकता, मुल्क अफरा तफरी का शिकार ना हो। इन जुमलों से पता चलता है कि वो मरने के बाद भी अपने मुल्क और कौम के बारे में सोचते थे। सुल्तान की मौत 41 दिन तक अवाम और फौजियों से पोशीदा रही, यहां तक कि इसका 17 साला बेटा अहमद मुराद, जो इमासिया का गवर्नर था, आया और तख्त संभाला। उनकी लाश को इस मकबरे में दफन किया गया था जो उन्होंने बरसा में कायम किया था। सब्ज मकबरे के नाम से जाना जाता है, जो आज बरसा के मकामात में से एक है। ये इमारत उस्मानी आर्ट की सबसे खूबसूरत मिसालों में से एक है। सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने अपने वालिद की छोड़ी हुई ज्यादातर जमीनों को दोबारा फतह करके 870,000 मुरब्बा किलोमीटर 335,908 मुरब्बा मील का मुल्क दिया, जो पिछली सरहदों से सिर्फ 72,000 मुरब्बा किलोमीटर कम था।
वो बचपन से ही इस पर बहुत बड़ा बोझ उठाता था। उन्होंने बहुत से चैलेंजों का सामना किया लेकिन उन सब को शिकस्त दी। उन्होंने ज़ाती तौर पर 24 जंगों में हिस्सा लिया था और तकरीबन 40 जख्म हासिल किए थे। उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त बीमारी से लड़ते हुए गुजारा और अपनी जवानी का काफ़ी वक्त हासिल किए बगैर ही उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने एक बार कहा था, मेरे बचपन से अब तक किसी ने भी उन परेशानियों का सामना नहीं किया है। उसका मकसद फतह नहीं बल्कि अमन था। उनके दौर में उस्मानियों को अनातोलिया और रोमिलिया में आराम करने और 10 साला खाना जंगी के जख्मों पर मरहम रखने का मौका मिला। इसके बाद सल्तनत में अमन कायम हुआ। उसने अपने हरीफों के जरिया पैदा करदा दहशत के माहौल को मिटाकर सबको इससे मोहब्बत करने पर मजबूर किया। वो एक मेहरबान, इंतहाई नर्म मिजाज सिपाही था। उन्होंने अपने वजीरों और उलमा के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए। उसने बायजीद पाशा को, जो उस वक्त उसका उस्ताद था, तख्त पर चढ़ने के बाद अपना वजीर मुकर्रर किया और अपनी मौत तक इसे नहीं छोड़ा। उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के 2 दारुल हुकूमतों यानी बरसा और एड्रीन में यादगारी काम करके अपना नाम अमर कर दिया। उसने एस की कामी पुरानी मस्जिद की तकमील का हुक्म दिया जिसे इसके भाई ने एड्रन में कमीशन किया था। फिर इसने इस मस्जिद के सामने एक बीडस्टिन, एक किस्म का ढका हुआ बाजार सदका के तौर पर मुकर्रर किया। उन्होंने मर्सीफोन में एक मदरसा और हम्माम भी तामीर किया जिसके साथ साथ बरसा में एक मस्जिद, मदरसा और सूप बावर्ची खाना भी बनाया। सुल्तानिया नामी ये मदरसा इतना मशहूर था कि मेहनती तालिब इल्मों से पूछा जाता था कि क्या अब सुल्तानिया मदरसे में उस्ताद बनना चाहते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरह। सुल्तान मोहम्मद के ज़माने में सिक्कों पर तगरा सुल्तान की महर दस्तखत के छापने का रिवाज बन गया। वो उलमा, बेवाओं और यतीमों को मुसलसल सदका देते थे और हर जुमा को गरीबों को खाना देते थे। उन्होंने हर साल हिजाज के मुक़द्दस मकामात, इस खित्ते के काबिल ज़िक्र और गरीबों को तहाइफ भेजने का रिवाज शुरू किया। ये रिवाज, जिसे सिरे जुलूस कहा जाता है, सिरे का मतलब है हुक्मरान की तरफ से हिजाज को भेजे गए पैसे और तहाइफ, सल्तनत उस्मानिया के इख्तिताम तक जारी रहा। वो उल्मा और इल्म के हुसूल के लिए बहुत अहमियत के हामिल थे। वो मशहूर आलम, सूफी उस्ताद, शायर और डॉक्टर सीही के करीबी थे। उनके मुख्तसर दौर हुकूमत में कुछ साइंसी काम उनके लिए वक्फ किए गए। मिसाल के तौर पर फलकियात, जोग्राफिया, तिब और नबातात पर फारसी जोग्राफिया दान ज़िक्रिया अल-ग़ज़वीनी की तहरीर करदा किताब अजाइब अल-महलूकात का तुर्की ज़बान में तर्जमा उनके नाम से किया गया और मर्दानी की तिब की किताब मंतहफ़ी अल-तिब सुल्तान मोहम्मद के एजाज़ में लिखी गई थी। सुल्तान ने इन कामों के मुसन्निफीन को अतियात देकर साइंस को फ़रोग़ दिया। वो पहले उस्मानी सुल्तान हैं जो शायरी करने के लिए जाने जाते हैं। मोहम्मद की रंगत गुलाबी सफ़ेद, सिया आंखें, काली खमदार भनवें, खमदार नाक, उकाब की आंखें, मोटी दाढ़ी, चौड़ी पेशानी, चौड़े कंधे, बड़ा सीना और लंबे बाजू थे। वो खूबसूरत और अच्छे कपड़े पहने हुए थे। मौरखीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि वो एक मजहबी, मुनसिफाना, बहादुर और मेहरबान शख्स थे। उन्होंने सबके साथ अच्छा बर्ताव किया। आखिरी उस्मानी सरकारी मौरख अब्दुर्रहमान शरीफ का कहना है कि वो मोहम्मद फ़ातेह सलीम अव्वल की तरह एक अजीम हुक्मरान थे जिन्हें सलीम ग्रैम के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनका कहना है कि उनकी हकीकी कदर पोशीदा रही क्योंकि वो मायूस कुन वक्त में रहते थे। यूसुफ वान हैमर पर्सिटाल ने इसका मवाजना नूह से किया जिसने अपनी कश्ती से ईमान वालों को बचाया। आमसिए बी शर्जेली अहमद की पोती कमरू से ज़ादे हनम उनकी पहली बीवी थी। उनकी दूसरी बीवी एमन हनम थी जो नसरुद्दीन बे की बेटी थी। उनके 9 बेटे और 9 बेटियां थीं। मुराद के अलावा उनके तमाम बेटे अपने बचपन आ जवानी में फौत हो गए। इसकी बेटियों की शादी असफंदियारों और करमानियों के शहजादों से या किसी वजीर या वजीर के बेटे से हुई थी।